So let us see question number 9 of exercise 6.1. A balloon which remains spherical has a variable radius. Okay, radius is variable. This is given to us. Right. So a radius is variable. Find the rate at which the volume is increasing. So that means we have to find out rate of change of volume dV by dt with the radius. Okay, increasing with the radius. So we have to find out dV by dr, rate of change of volume with radius, when radius is equal to 10 centimeter. So this is the information that is given to us. और जो balloon है, it will remain spherical. Okay. So let us try this question now. So let us write the solution. So what is given to us? We are given volume and radius. So let us say let volume of balloon is equal to V and radius R. ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम एंड रेडियस R. Find the rate at which the volume is increasing. So what we have to find? To find dV by dr. कब निकालना है? When the value of R is equal to 10. Okay. So let us see the relation between V and R now. We know. So what we know, we'll be writing over here. We know volume is equal to 4 by 3 pi R cube. Correct? Let us make it 2 and let us make it 1. Now we have to find out dV by dr. So it is easy. dV by dr R cube. So it will be 3 into 4 by 3 into pi into R square. 3 will cancel 3. And what we have to find? We have to find out dV by dr at R is equal to 10. So putting R is equal to 10 over here, we'll get dV by dr is equal to 4 into pi into 10 square. So this is equal to 400 pi volume upon radius. So that means it will be centimeter cube upon centimeter. Unit is very important. So we can write it as 400 pi centimeter square. This is the answer. Correct? So this is the complete answer. Now let us see question number 9. We have seen question number 9. Now question number 10 is important. Concept is important rather, because this will not be in your exams. So it is important. A ladder 5 meter long is leaning against a wall. तो given क्या है हमें? We are given a ladder that is 5 meter long. It is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall. That means the value is positive. Rate is positive. So rate is 2 centimeter per second. So how fast it is height on the wall decreasing? तो height decrease कर रहा है, उसका rate हमें चाहिए. When the foot of ladder is 4 meter from the wall, that means the x is given. We need to find out y. So let us see how will it look like. So we are having a ladder that is leaning against this wall. So we will take this color, let us say, and color, and this ladder we will make over here. Okay, what we need to rub? We need to erase this and this. Okay.
Now this is x-axis, this is y-axis, and we are having this as 5 meter. It is given to us, and the ladder is 4 meter away from the pole at the last. अच्छा, ladder को हम खींच रहे हैं इस तरफ, ladder is being pulled, तो क्या होगा, ये जो हमारे पास होगी ladder अभी जो खड़ी हुई है, when this is being pulled over here, तो यहाँ से ये slide करेगा नीचे. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका पोजीशन कहीं पे ऐसे आ जाएगा. ठीक है, ओके. सो लेट अस द क्वेश्चन नाउ. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी आर गिवन द लेंथ ऑफ ladder इज इक्वल टू 5. ये हमें गिवन है, और डिस्टेंस फ्रॉम वॉल दे रखा है हमको x. डिस्टेंस फ्रॉम वॉल, डिस्टेंस फ्रॉम वॉल, लेट अस से इट इज इक्वल टू x. और जो हमारी हाइट है, हाइट ऑन दी वॉल, ये जो हाइट की हम बात कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू y. सो हाइट on the wall is equal to y. ये तो हमें गिवन है. हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट dy by dt. कब निकालना है? when the value of x is equal to 4, because when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall. This we need to find out. Correct? अच्छा, जो हमारे पास वेरिएबल्स दे रखे हैं, वेरिएबल्स आर x and y. Are we having some relation between x and y? Yes, we have, because it is a right angle triangle over here, you can see. So we are having a relation x square plus y square is equal to 25. So let us make it 1. It is given to us. Now let us see what we need to do. एक तो हमें ये रिलेशन आ जाएगा, और हमें क्या दिया हुआ है, एक और चीज़ रखी है हमें, रेट 2 सेंटीमीटर व्हेन द लेडर इज बीइंग पुल्ड अवे. सो दैट मीन्स वी आर गिवन dx by dt. कितना दे रखा है? इट इज़ गिवन एज 2. तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन. तो ये गिवन है, ये गिवन है, हमें dy by dt निकालना है. तो ठीक है, डिफरेंशिएटिंग, क्या डिफरेंशिएट करना है? इक्वेशन 1, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25. तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट? ये आ जाएगा 2x dx. अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू टी करना है इसको, तो विद रिस्पेक्ट टू टी कर लेते हैं. तो 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt इज इक्वल टू 0. डिफ्रेंशिएट कर लिया, ये कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे हमें dx by dt की वैल्यू दे रखी है, वी कैन सब्सटीट्यूट. तो आ जाएगा x इंटू 2, dx by dt की वैल्यू ये दे रखा है, इज इक्वल टू माइनस y इंटू dy by dt. देयरफॉर dy by dt का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 2x अपॉन y. ओके, जब x का वैल्यू 4 होगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना होगा? व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4, सो पुटिंग 4 ओवर हेयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3. सो फ्रॉम 1, व्हेन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3. देयरफॉर dy by dt is equal to minus 2 into 4 upon 3, that is equal to minus 8 upon 3. अच्छा, ये रेट निकालना है इसका, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर या मीटर, जो भी दे रखा है, सेंटीमीटर ही दे रखा है पर सेकंड. तो ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है, इस रेट से हमारा जो लैडर है, इट इज़ द हाइट इज डिक्रीजिंग. So this is the answer
टू आवर क्वेश्चन, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। लेंथ ऑफ लेडर दिया हुआ है 5 मीटर और ये जो है इट इज़ बीइंग पुल्ड, तो पुल कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब x इंक्रीज हो रहा है। x इंक्रीज का मतलब है कि जो रेट ऑफ चेंज है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इट इज़ प्लस, तो लिख दिया dx बाई डी टी इज इक्वल टू +2 ओवर हेयर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy बाई डी टी, बिकॉज y हमारा डिक्रीज हो जाएगा तो ये नेगेटिव में आएगा, तो ये खुद ही आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, तो dy बाई डी टी हमें निकालना है। तो dy बाई डी टी का हमारा रिलेशन आ गया -2x अपॉन y, तो x तो हमें दिया हुआ है, x इज गिवन एज 4, तो इस समय y क्या होगा, तो y हमने यहाँ से निकाल लिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड वी हैव गॉट द आंसर। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11 ओवर हेयर। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2, तो ठीक है पार्टिकल मूव कर देगा इधर 6y along this curve. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times. तो एक रिलेशन दे रखा है हमें y और x में, यहाँ पे y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate, तो ये रिलेशन यूज़ करना है और हमें पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो 8 टाइम्स है x कोऑर्डिनेट ऑन दिस कर्व। तो ठीक है, सॉल्यूशन इसका लिख लेते हैं। सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है, वी आर गिवन अ कर्व दैट इज 6y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2, ये हमें गिवन है, ठीक है। और हमें गिवन है कि जो y चेंज कर रहा है तो dy बाई डी टी वो कितना चेंज कर रहा है, 8 टाइम्स dx बाई डी टी, ठीक। तो इसका सिंपल सा मीनिंग हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8, इसे यहाँ डिवाइड कर देंगे, इसको अपॉन dx बाई डी टी कर देंगे, विल मेक इट ओवर हेयर, सो इट विल गिव अस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8। तो एक तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब जो ये दिया हुआ है हमें इक्वेशन, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट, तो ये डिफरेंशिएट करके आ जाएगा रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं, तो 6 dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। देयरफॉर, अच्छा यहाँ से 3 से 2 कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, x स्क्वायर बाई 2। अब dy बाई डी एक्स तो हमें दे रखा है यहाँ से, ये आ गया, लेट अस से इट इज इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 को आप कंपेयर करो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 8, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x का वैल्यू क्या आ गया, +-4। तो x का वैल्यू +-4 हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं इससे, अब हमें y निकालना है। सो पुटिंग x इज इक्वल टू +-4 इन 6y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2। x क्यूब प्लस 2 क्या है, ये तो इक्वेशन ऑफ कर्व है, इसी में हमने रख दिया, ये पॉइंट तो इसी कर्व के ऊपर आएगा। वी गेट, y का वैल्यू निकालना है तो y निकाल लेंगे हम यहाँ से, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन 6 एट x इज इक्वल टू 4, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 क्यूब प्लस 2 अपॉन 6, दैट इज 66 अपॉन 6 इज इक्वल टू 11, एंड एट x इज इक्वल टू -4, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4 का क्यूब प्लस 2 अपॉन 6, तो -64 अपॉन 6। तो ये आ गया, कितना आ गया ये, फॉर 64 सॉरी ये 62 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू -31 अपॉन 3। तो अब पॉइंट्स आ गए हमारे पास, पॉइंट्स आर +4 जो हमें मिला यहाँ पे, 4 के साथ तो 11 आ गया,
और -4 के साथ वी आर हैविंग -31/3। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। The radius of air bubble is increasing at the rate of 0.5 centimeter per second. रेडियस इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 0.5 centimeter per second. तो दैट मीन्स dr/dt हमें दे रखा है. एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग. तो dv/dt निकालना है. कब निकालना है? व्हेन द रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो अब तो ईजी क्वेश्चन है हमारे लिए. इसका सॉल्यूशन लिख लिया. सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा इसका? इसमें में क्या दिया हुआ है? गिवन. जो गिवन है पहले गिवन देख लेते हैं. तो गिवन हमें क्या दे रखा है? dr/dt दिया हुआ है. dr/dt इज इक्वल टू हाफ. ये यूनिट भी चलो लिख ही लेते हैं, कोई बात नहीं है. सेंटीमीटर पर सेकंड ये गिवन है. अच्छा, आप कोई रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स दे रखा है? यस. वॉल्यूम, एक हमें वॉल्यूम दिया हुआ है. वॉल्यूम हमें पता है स्फीयर कितना होता है. इट इज़ 4/3 πr³. तो ये रिलेशन भी हमें गिवन है. तो अब हमें क्या निकालना है? हमें तो ये निकालना है कि dv/dr किस समय निकालना है? व्हेन द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1. दिस वी नीड टू फाइंड. ठीक है, टू फाइंड. तो चलिए क्वेश्चन कर लिया. dr/dt हमें दे रखा है, तो हम dv/dt निकाल लेते हैं. फ्रॉम टू dv/dt इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 × 4/3 × πr². 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 4πr² इंटू dr/dt भी आएगा, डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट भी आएगा, इंटू dr/dt. अच्छा, dr/dt की वैल्यू हमें गिवन है, हाफ है. सो इज इक्वल टू 4πr² इंटू हाफ. हाफ से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2πr². हमें क्या निकालना है? dv/dt एट r इज इक्वल टू 1. सो एट r इज इक्वल टू 1 dv/dt. अच्छा, हमारे पास dv/dt आ गया और ये आ गया सब कुछ. तो अभी हमारे पास क्या रह गया है यहाँ पे? dr/dt की वैल्यू हमने लिख दी. तो dv/dt हमने कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दिया है. एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग. तो सॉरी, इट इज dv/dt. ये t है नीचे, ये गड़बड़ हो गया. ठीक है, इट इज t विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो dv/dt एट r इज इक्वल टू 1. इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 × π × 1 × 1 दैट इज इक्वल टू 2π. और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इट इज सेंटीमीटर क्यूब एंड इट इज पर सेकेंड. तो ये आंसर आना चाहिए हमारा. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13 नाउ. Question number 13. What it says? A balloon which remains spherical has a variable diameter. इसका डायमीटर वेरिएबल है. तो डायमीटर वेरिएबल है का मतलब है कि इसका रेडियस भी वेरिएबल है. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमें dv/dx निकालना है. x क्या है? x इज द, ये बात कर रहा है डायमीटर की, और डायमीटर में x को ये यूज़ कर रहा है. ठीक है, तो dv/dx निकालना है. वी डोंट हैव टू फाइंड आउट dv/dt. तो ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं. तो सॉल्यूशन कर लिया इसका. सॉल्यूशन, व्हाट इज गिवन टू अस? हमें दे रखा है एक स्फेयर. स्फेयर दे देते हैं, स्फेरिकल बैलून. ठीक है, इसका वॉल्यूम तो है v, डायमीटर है हमारे पास लेटर से d, और रेडियस हो गया r. अब वेरिएबल डायमीटर है, तो गिवन में फिर और चीज़ें देख लेते हैं. गिवन वेरिएबल डायमीटर, तो d क्या दे रखा है हमको? वेरिएबल डायमीटर d इज इक्वल टू 3/2 2x + 1, ये दिया हुआ है. और हमें क्या दिया हुआ है? हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड. हम क्या फाइंड कर लें? हमें तो dv/dx निकालना है.
तो ठीक है, टू फाइंड डी वी बाई डी एक्स, ये कर लेंगे। अब कुछ और रिलेशन दे रखा है, रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है, वी और आर के बीच में रिलेशन आएगा, और आर को या तो हम डी में चेंज कर देंगे। सो वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है, ठीक है। तो आर तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो डी दे रखा है हमको, तो इसका ट्वाइस जो आर होगा, आर का ट्वाइस तो डी आ जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, पहले तो इनको नंबर कर दें, इट इज़ 1, लेट अस से इट इज़ 2, और v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, इट इज़ 3। तो वॉल्यूम को फिर थोड़ा चेंज कर देते हैं, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, डायमीटर तो ये हो गया, तो रेडियस क्या हो गया, डायमीटर अपॉन 2, तो इसका मतलब 3/4 हो गया, 2x + 1 का होल स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब, नॉट स्क्वायर, इट इज क्यूब, ठीक है। आर कितना होता है, डायमीटर अपॉन 2, तो इसे अपॉन 2 कर दे, नीचे 4 आ गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ये वॉल्यूम को लिख लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को बाहर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, एक 4 से तो एक 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या कर लें, एक 3 से तो हम एक 3 कैंसिल करेंगे, तो ऊपर लिख लेते हैं वैल्यूज़ को, 4/3 इंटू 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64, इंटू पाई इंटू 2x + 1 का होल क्यूब, 3 9 4 16, तो ये आ गया 9/16 पाई इंटू 2x + 1 का होल क्यूब, ठीक। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डी वी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं यहाँ से, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9/16 पाई, तो आगे आ गया। अब हमें क्या चाहिए, 2x + 1 को होल क्यूब को हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो कर लेते हैं। सो इट विल बी 3 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2, सॉल्व किया, 2 8 16, तो ये आ गया 27 पाई/8 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर, तो यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। अब ये डी वी बाई डी एक्स दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर, सो दैट विल बी इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 14th, सैंड इज पोरिंग। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का मतलब कंसेप्ट इंपॉर्टेंट। सो इन दिस क्वेश्चन सैंड इज पोरिंग एट फ्रॉम द पाइप, एक पाइप है, उससे सैंड पोर कर रही है पाइप से, एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम दे रखा है, जो वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है, द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन, तो हमारे पास एक लगभग एक कोन बन गया है यहाँ पे, इट इज अ कोन इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज, जो ये हाइट दे रखी है और ये आर दे रखा है, ये हाइट है और ये आर है रेडियस, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ द बेस। तो ये गिवन है, क्या गिवन है, हाइट जो होगी हमेशा 1/6 ऑफ आर रहेगी, ये हमें गिवन है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग, तो हमसे क्या पूछा है, वी हैव टू फाइंड, what to find, height of sand cone increasing, that means dh/dt निकालना है। कब निकालना है, when height is equal to 4। तो ठीक है, और क्या क्या रिलेशन दे रखा है हमें, वो हम निकाल लेते हैं। हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। अच्छा, सैंड इज पोरिंग एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो हमें dv/dt भी दे रखा है, dv/dt कितना दे रखा है, 12 है ये तो ठीक है, 12 आ जाएगा यहाँ पे। अब वॉल्यूम और आर में क्या रिलेशन होता है, और एच, तो वॉल्यूम कितना होता है कोन का, 1/3 पाई
आर स्क्वायर इंटू एच, ये भी हमें गिवन है। तो हमें तो बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो हमारा दो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, आर भी है एच भी है। तो इसे हम चेंज कर लेते हैं एक वेरिएबल में, इसे हम एच में चेंज कर लेते हैं यूजिंग वन। तो यहाँ पे आर आ जाएगा 6h, आर इज इक्वल टू 6h। तो वॉल्यूम कितना आ गया 1/3 पाई 6h का होल स्क्वायर इंटू एच, ये आ गया 4। और इस हमने क्या यूज़ किया, ये आ गया यूजिंग 1। तो दोबारा लिख लेते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 36h³। 3 से 12 टाइम चले गया, तो ये आ गया 12 पाई h³। अब dv बाई dt निकाल लेते हैं। dv बाई dt कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 12 इंटू पाई इंटू एच स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी। अच्छा, डी बाई डी टी हमें गिवन है फ्रॉम 2, तो ये तो है 12, तो 12 यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल टू 3 इंटू 12 इंटू पाई इंटू एच स्क्वायर। तो ये कह रहा है व्हेन हाइट इज इक्वल टू 4, हाइट इज इक्वल टू 4। तो हाइट की जगह 4 रख दिया, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इंटू डी एच बाई डी टी। तो डी एच बाई डी टी निकल जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो गया, देयरफॉर डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 48 आ गया। डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 1/48 पाई आएगा, सॉरी, ह्यूमन एरर, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी एच बाई डी टी आ जाएगा इज इक्वल टू 1/48 पाई। अच्छा, ये तो हमारे पास हाइट चेंज हो रही है, तो ये तो आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द कॉस्ट C इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स, X यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसकी जो कॉस्ट आ रही है इतने यूनिट्स के प्रोडक्शन का, वो आ रहा है, ये रिलेशन हमें दे रखा है यहाँ पे, इट इज़ गिवन टू अस, इट इज़ गिवन टू अस। तो हमें करना क्या है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन, ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिया है, इसमें हमें कुछ फाइंड भी करना है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, कहीं गड़बड़ हो गया, 17 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 17। तो ठीक है, ये कॉस्ट दे रखा है, मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो यह आ जाएगा डी सी बाई डी एक्स, हम इसकी बात कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास, इट इज़ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, कॉस्ट का, किसके साथ, आउटपुट के साथ, जितनी यूनिट्स आउटपुट हो रही हैं एक्स हो रहा है, ठीक है, डी सी बाई डी एक्स। तो डी सी बाई डी एक्स क्या हो गया, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, तो आ जाएगा 3 इंटू 0.007 एक्स स्क्वायर माइनस 0.006 एक्स प्लस 15। अब ये निकालना है एट x इज इक्वल टू 17, तो लगा लेंगे इसका वैल्यू 3 इंटू 0.007 इंटू 17 का होल स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। इसे सॉल्व कर लेंगे, तो इसे सॉल्व आप कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग 21 के आसपास, 20.967, ठीक है। सो दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। ये भी ऐसा ही है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़, अभी हमारे पास जो कॉस्ट था, अभी हमें रेवेन्यू दे रखा है, द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स, तो ठीक है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू 7, तो हमें डी आर बाई
dx निकालना है. कब निकालना है? व्हेन x इज इक्वल टू 7. तो ये कितना आ गया? ये आ गया 2 13 26. सो इट इज 26x प्लस 26. तो इज इक्वल टू 26x प्लस 1. x का वैल्यू 7 है, तो 26 इंटू 8. 8 या 48, 8 या 16, तो 208. तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? 208 आना चाहिए इसका आंसर. करेक्ट. 208. This is the answer. Now let us see question number 17th. Question number 17th is the rate of change of area of a circle. ये आप क्वेश्चन पहले कर चुके हो ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में. So the rate of change of area of a circle with respect to its radius. तो आपको निकालना क्या है? आपको तो dA by dr निकालना है at r is equal to 6. तो हमें पता है कि एरिया तो कितना होता है? एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है. दोनों को अच्छे से डिफ्रेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू रेडियस. तो ये आ गया 2 पाई आर, और 2 इंटू पाई इंटू वट इज़ द वैल्यू ऑफ आर? 6. तो 12 पाई आ गया आंसर. तो ये हमारा आंसर है बी. ठीक है. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. सॉरी. द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस. द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 15 इज. तो यदि क्वेश्चन है हमें तो dr बाई dx निकालना है. dr बाई dx कब निकालना है? व्हेन x इज इक्वल टू 15. तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा? ये आ गया 6x प्लस 36, और x का वैल्यू तो 15 रख दिया, प्लस 36. 90 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 126. तो रिजल्ट इज 126. So this exercise is finished. So thank you.